सो जब भी हम शॉपिंग पर जाते हैं, स्पेशली उन चीज़ों की जो कि हमारे बजट से थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, एक डायलेमा हमें हमेशा रहता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें एक्चुअली स्पेंड करना चाहिए, विच आर गोइंग टू ऐड टू आवर एक्सपीरियंसेस एंड लाइफस्टाइल अपग्रेड, वर्सेस कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अननेसेसरी एक्सपेंस है एंड वी शुड अवॉइड इट। सो वॉट वी ट्राइड डूइंग इज, हमने चैट जीपीटी से कोशिश की कि एकदम अनबाइज्ड वे में उसके ढेर सारे पर्सपेक्टिव्स ले सके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कलेक्ट कर सके, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने एक डिस्कशन किया और उस डिस्कशन से हम लोगों ने काफ़ी सारे टेक अवेज लिए एंड होपफुली आप लोगों को भी इस डिस्कशन से काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे। एंड ऑल्सो वी आर वेरी न्यू टू दिस इंटायर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, रिलेटेबल लगता है, या फिर आप हमारी इस ग्रोथ की जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो जहां हम अपने डेली की लर्निंग्स आपके साथ शेयर करते हैं, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस। लेट्स गो। हे जीपीटी, so I often face this dilemma where I get confused, as in if I'm spending on something, is it actually me upgrading my lifestyle and an experience that I should spend on to actually gather some experiences in my life and to live my life, to upgrade my life? Or if it's actually something which is a luxury for me and something that I should not spend on. Let me give you an example. If I go and spend money on a fancy dinner night, then from one angle I can also view it as an experience where I'm spending money to actually get an experience of how luxury cuisines look like, and that experience is actually going to help me in my life somewhere, in my personal growth, to have my conversations with my colleagues or with people around me. Versus if I look at it the other way, it is also a luxury which I spent, which was completely maybe unnecessary. So how do I actually differentiate if something is actually a luxury or something is worth spending for experience? Give me both the sides of story, convince me on both parts, the luxury part and upgrading my life part, both, and give me examples relating from everywhere, from international. You can take examples of international topics, any examples from big leaders or any famous books and everything. So you are open to take any examples, but then give me pros, give me 2 and 4 for both of it. Okay, so first of all, it says great question, and honestly this is one of the most important adulting dilemmas people face. And is this spending enriching my life or is it just indulging? मतलब starting intro है ये तो बस, जहाँ पे वो बता रहा है, validate कर रहा है of course कि हाँ good question and everything. I'll give you both sides fully with strong logic, psychology, behavioral finance concepts and examples from successful people, world leaders and books, and then I'll give you a clear mental framework that you can apply every single time before buying anything, whether it's a fancy dinner, new gadget, premium gym membership, travel or education. Before start पता नहीं, मतलब I don't know whether if इसने सिर्फ buying perspective से सारी चीज़ें बोली है या नहीं, but let's see, क्योंकि हम in general spending की बात कर रहे हैं, not only purchasing, but let's see. So part 1 is the case for spending. Upgrading your life and experiences are investment. About this part, this side argues that intentional spending is a catalyst for growth, identity, opportunity and expanded mindset. First point is experiences expand your identity, which is coming out of Atomic Habits. James Clear says every action you take is a vote for the person you want to become. When you dine at finer places, travel to new countries, attend conferences, stay in better hotels, purchase quality clothes, you are sending a signal to your brain about the life standard you want. Identity expansion often precedes external success. For example, Warren Buffett famously spent big on learning, courses, mentors and traveling early in his life.
even when money was tight. Second example is Steve Jobs spent money on exploring India plus studying calligraphy. That luxury ended up shaping Apple's design philosophy. मतलब इट्स वैलिडेटिंग द फर्स्ट पार्ट की जो तुम्हारे जहाँ तुम स्पेंड करते हो एक्सपीरियंसेस वो एक्चुअली तुम्हें कहीं ना तो कहीं हेल्प करते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली वैलिडेटिंग दैट स्टेटमेंट इन फर्स्ट पार्ट. करेक्ट. और मतलब वो ये रीजनिंग भी दे रहा है हमको काइंड ऑफ कि अगर आपको लगता है कि स्पेंड करना नेसेसरी है या नहीं है तो इट इज़ नेसेसरी फॉर श्योर. बिकॉज जब करने से मतलब वन पार्ट इज कि ओके सेइंग कि हाँ नहीं इट इज़ नेसेसरी, बट देन इट इज़ ऑल्सो गिविंग ऑल द रीजन्स व्हाई you should be spending. Second part is exposure generates opportunities. Your environment determines your opportunities. A fancy dinner with colleagues or seniors in Dubai may put you in rooms you don't normally enter, give you conversational assets, help you understand elite culture, which is useful for leadership roles, help you connect socially, and expand your network. You don't rise to the level of your goals, you rise to the level of your environment. इसके लिए भी दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे इसने मेंशन किए. Many global CEOs like Satya Nadella, Sundar Pichai and Indra Nooyi actively invested in social exposure, which is clubs, networking events and travel, and they credit these experiences as essential to their success. एक्चुअली जब मैं भी प्लेस हुई थी तो मुझे एक फैमिली मेम्बर ने इनफैक्ट मेरे भाई ने मुझे ये चीज़ भी बोली थी कि नाउ इंश्योर कि तू नई नई जगहें ट्राई करे, नई नई जगह डिनर्स पे जाए, लंचेस पे जाए, क्योंकि ये एक्चुअली तुझे कॉन्वर्सेशन में बहुत हेल्प करेंगे कल को इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन अ ग्रुप. क्योंकि तुम एक अब कॉर्पोरेट कल्चर में स्टेप कर रहे हो तो उधर बहुत लोग बहुत सारे वेरियस एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं, बहुत सारी डिफरेंट लाइकिंग्स के साथ आते हैं एंड लोग बहुत डिफरेंट कल्चर से आते हैं. सो उसमें बहुत सारे तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो कि एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करते हैं एंड दीज एक्सपीरियंसेस आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड कॉन्वर्सेशंस. कोई ग्रुप है अगर किसी खाने की जगह के बारे में डिस्कस कर रहा है कि यार वहाँ का ये चीज़ बहुत अच्छा है, तो कभी मतलब नॉट एवरी टाइम यू माइट हैव समथिंग टू ऐड बट समटाइम्स यू शुड हैव समथिंग टू ऐड एंड रिलेट टू. वरना तुम कभी भी ऐसे उनके साथ कभी कॉन्वर्सेशन जैसे बिल्ड नहीं कर पाओगे. यू विल ऑलवेज बी ऑन दी टेकिंग साइड. तुम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे कभी भी एंड उसके कारण तुम थोड़ा सा हो सकते हो उस ग्रुप से ऐसे मिसफिट फील करो उसमें. तो बट अगेन इस पॉइंट पे ना मेरा एक और थॉट है कि जैसे अगर इफ़ यू सी जो क्वेश्चन था व्हाट वाज योर क्वेश्चन अबाउट कि हाउ डू यू ट्राई टू डिफरेंशिएट कि कौन सा लग्जरी है, क्या चीज़ लग्जरी है, कौन सा अपग्रेड है. अब यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं कि हाँ बेटर प्लेसेस पे हमको जाना है एंड वहाँ से जाके वील गेट दोज एक्सपीरियंसेस जो हमको हेल्प करेंगे. बट देन किस लेवल तक जाना है, करेक्ट, कौन सी वो थिन लाइन क्या है, वो still remains a question, right? Let's see the third part. Money circulates, spending increases flow, which is psychology plus spiritual perspective. This is where that money attracts money theory plays in, but with logic. When you spend intentionally, your scarcity mindset reduces, your confidence increases, you start taking bigger opportunities, and your energy shifts to abundance. You don't get rich by hoarding, you get rich by using money strategically. Example, the psychology of money says people who invest only in savings often miss bigger opportunities, and Rich Dad Poor Dad explains that assets feed you, experiences train you to recognize assets. Assets feed you and experiences help you recognize assets. तो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एसेट है, ये मैंने पढ़ा था एक बार ये इसके बारे में, तो इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग सम एसेट, अगर आप उसको सेविंग के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो वो आपके लिए एसेट एक बना हुआ है, बट देन इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू क्रिएट मोर एसेट्स. वो एक एसेट आपके पास बना हुआ है और उसको आप यू कैन कीप यू नो आइदर आप उसको सेल कर लोगे, उससे जो पैसा आएगा या वो आपको एक रिकरिंग इनकम देते रहेगा, बट इट वोंट हेल्प यू इतने बड़े लेवल पे टू गेट यू अनदर एसेट. However, if you are spending, if you are taking experiences, so those experiences are going to help you recognize the new assets that you might be interested in and that you might aim for.
हाँ एक्चुअली मुझे लगता है ये चीज़ तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे भी काफ़ी अप्लाई होती है. काफ़ी बार जैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि बी इट एनीथिंग, बी इट सम मेकअप प्रोडक्ट या फिर कुछ भी, कि कुछ खरीदती हूँ मैं, सो वो होता है ना कि महंगी है ये चीज़ तो हम होल्ड करके रख लेते हैं कि यार इसको तो स्पेशल ओकेजन्स पे ही यूज़ करेंगे या फिर इसको तो तब ही यूज़ करेंगे, और वो कभी भी नहीं आता है. हमेशा हमें लगता है कि इससे कुछ बेटर होगा तब यूज़ करेंगे, इससे कुछ बेटर होगा तब करेंगे. तो वो मुझे भी ऐसा लगता है कि पर्सनली मैं भी थोड़ी ऐसी हूँ कि मैं कभी वो एक्सपीरियंस एंजॉय नहीं कर पाती हूँ इवन आफ्टर स्पेंडिंग. तो उसके कारण मैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस पे जा ही नहीं पाती, बिकॉज हमेशा मुझे लगता है कि वो चीज़ तो ऑलरेडी रखी है ना, अभी आई हैव नॉट बीन एबल टू एक्सपीरियंस दैट. तो आई थिंक हाँ, और वो स्कार्सिटी माइंडसेट हमारे बीच में एक वो बैरियर बन जाता है कि पहले आपने एक बार अपने मेंटली बैरियर ब्रेक किया टू परचेस इट, बट आपने परचेस करके अब आपके पास रखा है सामने, लेकिन अब आप उसको बहुत बचा के यूज़ करो या फिर आप उसको नहीं किसी स्पेशल ओकेजन पे बाद में यूज़ करेंगे करके आपने उसको होल्ड करके रखा है. तो बेसिकली, और जब आप यूज़ भी कर रहे हो कोई भी चीज़, तब भी आपके दिमाग में कि नहीं यार ये जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू लास्ट लॉन्गर. राइट. Fourth is you only live once. Memory is an ROI. Experiences are the only purchases that grow in value with time. A dinner, a trip, a concert, these memories stick with you forever. Example, travel studies show that people regret not experiencing enough later in life, and not that they didn't save more. आउट ऑफ द टू एक्सपीरियंसेस लेना और सेविंग में, सेविंग के लिए कम रिग्रेट्स है लेकिन एक्सपीरियंसेस नहीं लेने के ज़्यादा रिग्रेट्स है. लेट्स मूव टू पार्ट 2 जो अदर साइड है. राइट. बट अगेन मैं पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज अभी भी मुझे जो मेरा इंटेंट था या जो हमारे क्वेश्चन का इंटेंट था, आई थिंक इसने ब्रेक ही ऐसे किया है, वो पहले पार्ट 1 का बताएगा फिर वो पार्ट 2 का बताएगा एंड देन इट विल कंक्लूड समथिंग. Let's see. ठीक है. Part 2 is the case against spending. It's a luxury you don't need. This counter argument is equally strong and logical. First, lifestyle creep, the silent killer. Luxury can turn into normal and then you constantly need more luxury to feel the same satisfaction. And this destroys wealth building. Example, many high salary professionals in Dubai, Singapore, New York never become wealthy because they spend at the level they earn, and this is called the hedonic treadmill. मेक सेंस. वैसे अगर मैं किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ तो नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे होगा कहीं ना तो कहीं दिमाग में कि यार अब मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी तो मुझे और कुछ बेटर एक्सपीरियंस करना है. देन आई डोंट नो वेयर टू पुट अ स्टॉप टू इट. राइट. So makes sense so far. ये बात भी. Right. मुझे ऐसा लगता है कि मे बी अगर हम कुछ नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो नॉट लाइक टेकिंग इट इन टर्म्स ऑफ कि कितना हम स्पेंड कर रहे हैं उस पर, बट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल कि जैसे हमने जो पैक बनाया था कि हम हर वीकेंड पे एक नई जगह ट्राई करेंगे, तो इट्स नॉट एसोसिएटेड विद कि हम इतनी महंगी जगह तो ट्राई करेंगे ही करेंगे. इट्स मोर अबाउट कि एक नई जगह एक्सपीरियंस करेंगे, बी इट लेस एक्सपेंसिव और बी इट मोर एक्सपेंसिव. इट्स अबाउट आवर एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच वी आर स्पेंडिंग. राइट. करेक्ट. तो वही है कि वो जो हम जिस तरीके से स्टार्टिंग में बोल रहे थे क्वेश्चन में कि हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको लग्जरी में क्लासिफाई करें और किसको हम एज अ लाइफस्टाइल अपग्रेड में करें. एनीथिंग दैट गिव्स यू एक्सपीरियंस एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू आर गेटिंग अगेंस्ट द मनी दैट यू आर पेइंग. आई थिंक दैट इज अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. करेक्ट. Second is experiences become excuses. Sometimes people justify unnecessary spending by labeling it as growth. For example, 800 rupees coffee, useless gadgets, luxury experience dinners, expensive subscriptions. Sometimes it's just emotional spending disguised as personal development. Example, Mark Manson, who is the author of Subtle Art of Not Giving a F. Most people think they want experiences, but what they really want is distraction. इसमें ना मेरा when I was reading this मेरे दिमाग में मेरा एक दोस्त आया. मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैं इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मेरे दिमाग में अगर आउट ऑफ ऑल फ्रेंड्स वो कुछ यूनिक है, उसका यूनिक फैक्टर ये है कि ही हैज़ ऑल द यूनिक थिंग्स
जो चीज़ों के बारे में मुझे पता भी नहीं है. वन टाइम ही वॉज टेलिंग मी कि कान साफ़ करने की उसके ऐसे एक मशीन, वो कान साफ़ करने की ईयरबड है जिसके अंदर जब कान साफ़ करते हैं तो स्क्रीन पे ऐप में यू कैन वॉच इट अंदर कैसे साफ़ हो रहा है. मतलब अब उसमें क्या है ऑनेस्टली कि ठीक है, आई गेट टू नो अबाउट इट कि अच्छा ओके दिस इज ऑल्सो समथिंग विच कम्स, बट अगेन आई ऑलवेज फील कि ऐसे टाइप की जो चीज़ें हैं उसमें आई डोंट नो हाउ मच वैल्यू एड इट इज़. पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाती वो चीज़, बट मे बी फॉर हिम इट डज. यस करेक्ट. बट यही पॉइंट है आई थिंक कि अगर आपके एक्सपीरियंसेस की आप स्पेंडिंग करने में अब आपका ऐसा है कि अब आप इतने खुले हो चुके हो कि नहीं भाई मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करता हूँ और वो एक्सपीरियंस मतलब वो एक्सपीरियंस कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर रहा आई थिंक. सो अगर ऐसे कोई भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्सपीरियंसेस है देन प्रॉबेबली वो आपकी एक हैबिट बन चुके हैं राइट. थर्ड, यू डोंट नीड लग्जरी टू ग्रो. एक्सपोजर इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंसिव. You can learn elite communication, culture, and sophistication by reading books, watching interviews, traveling economically, following leaders, socializing across levels. Example, most global leaders have humble lifestyle habits, like Elon Musk sleeps on floors of Tesla factories. Warren Buffett lives in the same old house. Narayan Murthy and Azim Premji live extremely frugally and they didn't need fancy dinners to grow. हाँ मतलब आई थिंक द सेम थिंग विच वी वर सेइंग कि हमको प्राइस एंड कॉस्ट के टर्म्स में नहीं देखना है. वी हैव टू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ हाउ मच वी आर पेइंग एंड व्हाट इज द एक्सपीरियंस वी आर गेटिंग अगेंस्ट इट. तो उसका बट आई रियली लाइक द पॉइंट जिसमें उसने मेंशन किया है कि मतलब मुझे ये सटल मैसेज आया कि not all conversations are going to be around food or your restaurant experiences or something, right? It can also be regarding कि तुमने कौन सी बुक पढ़ी, तुमने कौन सी से इसने जो लिखा है कि किस उससे किसी कोई लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रही है उसके बारे में कुछ डिस्कशन हो सकती है. सो ऐसी चीज़ें भी इज समथिंग विच यू कैन यूज एज कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स एंड टू मिंगल विद पीपल. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें बस वो महंगे एक्सपीरियंसेस लेने के पीछे तुम्हें बस एक वो रीजन यूज करने की जरूरत है या वो एक्सक्यूज यूज करने की जरूरत है. मतलब देयर आर अदर वेज, तो नॉट जस्ट दैट इज ऑल्सो वन वे. उस पर भी स्पेंड करो बट नॉट एवरीथिंग शुड जस्ट गो ऑन दैट. मुझे ना इसमें हमेशा से एक चीज़ लगती है कि जैसे कॉन्वर्सेशन बिल्डर्स की जब हम बात करते हैं, जब हम कॉन्वर्सेशंस बिल्ड करना है, स्टार्ट करना है, तो हम वी से कि वी डू नॉट हैव इनफ टॉपिक्स एंड ऑल. जैसे मैं आई एम अ बिग लवर ऑफ लिसनिंग पॉडकास्ट. ठीक है, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ, बहुत सारी चीज़ें. नाउ आई हैव फाउंड पीपल, आई हैव मेट सो मेनी पीपल जिनके साथ मेरा कॉन्वर्सेशन बिल्डिंग जब चालू हुआ, कहीं पे भी एक टॉपिक निकला अबाउट समथिंग एंड एज सुन एज आई मेंशन इट कि ये मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था एंड सामने वाला वाइब्स और हम दोनों ने कुछ पॉडकास्ट में सुना समथिंग, तो हमारा कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो जाता है राइट. नाउ दोज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस आर वन पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस, वन टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस. सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस जब हम किसी चीज़ के ऊपर, चाहे शूज़ की क्वालिटी के ऊपर बिल्ड हुआ या डिनर के ऊपर बिल्ड हुआ. लेकिन out of these two type of conversations I have always felt कि जहाँ पर we are actually talking about values या कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस जो है, दोज कम्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग. जैसे आप कोई बुक का एग्जांपल ले लो, कोई आप न्यूज़ पढ़ी थी उसका है, कोई आपने पॉडकास्ट में कोई चीज़ सुनी है, या आपने किसी बड़े सेलिब्रिटी के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, या फिर किसी की लाइफ की जर्नी के बारे में पढ़ा हुआ है. दोज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस व्हेन एवर दे आर द स्टार्टर्स, दे काइंड ऑफ बिल्ड वेरी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस. एंड यू प्रेफर दैट, मतलब वो पर्सनली हर किसी की चॉइस हो सकती है. सम पीपल डोंट वांट टू हैव दोज इंटेलेक्चुअल communications, and also मुझे लगता है for some individuals this might also vary कि कभी उनको intellectual conversations चाहिए, कभी उनको they just want to have a very casual conversation or something. तो उस केस में वैसी टाइप के experiences तुम्हारे help कर सकते हैं. So but just one point before I move on to Adir, the next point is I have always struggled in understanding कि जो भी कोई इंडिविजुअल है, नॉट अबाउट माई सेल्फ बट कोई भी इंडिविजुअल, इफ ही इज ट्राइंग टू ग्रो इन हिज लाइफ, लेट्स से इन अ पर्टिकुलर डिमेंशन और इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसके लिए किस तरीके के कॉन्वर्सेशन बिल्डर्स ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. इज़ देयर अ डेफिनेशन टू दैट? अगर मैं कोई बिजनेस डेवलप करना चाहता हूँ, या अगर इफ़ आई एम ट्राइंग टू डेवलप समथिंग
जहाँ पे मैं बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड हूँ और मैं कुछ नए नए लोगों से एक्सपीरियंसेस से सीख के उनके बेसिस पे एक नया बिजनेस डेवलप करना चाह रहा हूँ. विल conversation starters या conversations which are built on the dining places and fancy cafes that people have visited to, वहाँ से भी मुझे वो हो सकता है कि डेफिनेटली हो तो सकता है, बट किस एक्सटेंट तक ऐसे वाले लोग मुझे हेल्प कर सकते हैं एंड कितने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सनली कुछ ऐसा बिल्ड करना चाह रहा है उसके लिए यूजुअली इंटेलेक्चुअल, मेरा बायस पर्सनली है कि इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस हेल्प करते हैं. वहीं पे अगर कोई अगर मान लो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोग हैं जो कॉर्पोरेट में लीडरशिप के टर्म्स में ग्रो करना चाह रहे हैं, उनके लिए इस तरीके के फैंसी डिनर्स, कैफेज वगैरह टाइप के या एक्सपीरियंस बेस्ड वाली चीज़ें जो है वो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा बिल्ड होते हैं. बट मतलब इफ यू आस्क मी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड नहीं है. इट इज़ वेरी पर्सन स्पेसिफिक. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लीडर्स इन माई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ के साथ यू एक्चुअली बॉन्ड ओवर योर फूड एंड ट्रिप एक्सपीरियंसेस, वाइल अदर्स आर लाइक जो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस, अगर तुम उन्हें some books के बारे में बता रहे हो या फिर you're talking about the social news and everything, या latest जो भी political news चल रही है. So I think it is very person specific कि उस बंदे का interest कहाँ है एंड वो कहाँ बंदा या बंदी अपने एक्सपीरियंस पे स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम या मनी, एंड देन वर्सेस व्हाट यू आर डूइंग एंड देन यू बॉन्ड देयर. लाइक मुझे लगता है कि वो ग्रोथ वाली जो चीज़ भी है, इवन इफ लाइक यू आर लुकिंग टू कनेक्ट विद पीपल फॉर योर बिजनेस, हो सकता है कि तुम्हें वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए किसी और की लाइकिंग जो है, किसी को बहुत फैंसी जगहों पे खाने का पसंद हो या फिर कुछ ऐसे, सो दैट पर्सन माइट बी एक्चुअली बॉन्डिंग विद यू ओवर फूड टॉक्स. तो मुझे लगता है इट्स नॉट दैट स्पेसिफिक बट इट्स मोर लाइक पर्सन स्पेसिफिक. मेक सेंस यस. आई डिडंट थिंक ऑफ इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आपको कभी भी फेवर मिलना आसान हो जाएगा इफ यू हैव ऑलरेडी बॉन्डेड. दैट बॉन्डिंग कुड बी ऑन एनी टॉपिक. यस, मेक सेंस. And fourth and the last point here is emotional spending is equals to financial weakness. If you can't say no to luxury, you are not in control of money. Money should obey you, not the other way around. Very valid. है ना, मतलब हाँ, ये तो माइंडफुली जब तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि यार मुझे तो इस बार एक महंगे रेस्टोरेंट में जाना ही जाना है वो एक्सपीरियंस के लिए, जबकि तुम्हारा बजट टाइट चल रहा है या फिर कुछ भी है, मतलब या फिर मुझे वो एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदनी है क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए मेरे बर्थडे पे या फिर किसी भी चीज़ पे, देन आई थिंक यू हैव स्टार्टेड लूजिंग इट देयर. करेक्ट. कि तुम्हें वो माइंडफुलनेस होनी चाहिए कि तुम किस मोमेंट पे कैसा एक्सपीरियंस अफोर्ड कर सकते हो और कैसा एक्सपीरियंस तुम्हें लेना चाहिए. बेसिकली अगर आपने किसी भी मोमेंट पे एक्सपीरियंस को मनी से टैग कर दिया कंपल्सरीली तो इश्यूज है आपके, बिकॉज एक्सपीरियंसेस तो आई हैव सीन पीपल जो कि नॉर्मली रोड्स पे जाके जो बेगर्स है उनसे कॉन्वर्सेशन करके उनसे चीज़ें एक्सपीरियंसेस सीखते हैं, एनजीओज में जाके हेल्प करते हैं. तो यू कैन इवन गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय टॉकिंग टू पीपल एंड गेटिंग टू नो अबाउट देम विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग. करेक्ट. एंड तो अगर हमारा भी देखो तुम, वी हैव डन सो मेनी बजट ट्रिप्स इन इंडिया, तो उसमें भी आई थिंक जो एक्सपीरियंसेस और जो कॉन्वर्सेशंस हमने लोगों के साथ करी है, वो हो सकता है कोई बंदा जो पूरा वर्ल्ड घूम के आ चुका है, मतलब आई नो उसका बहुत डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस रहा होगा, बट जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उनके हो सकता है वो नहीं रहे होंगे. सो इट इज नॉट दैट यू नीड टू स्पेंड टू गेट एन एक्सपीरियंस, बट तुम्हें बस वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि what does your pocket allow that time. Correct. Makes sense. Okay, so last part here is, so which one is right? Honestly, both. It depends on a single thing. The ROI test. अब ROI test किसने दिया है छोटा सा. Before spending on anything, ask yourself, is this spending expanding my identity? If yes, then you should invest in it. Second, is this spending giving me skills or exposure or relationships? If yes, then invest in it. Will I remember this after 6 months? If yes, then it is an experience. This is such a good thing. अब काफ़ी बार हम लोग डिनर करके आते हैं और हमको 2 दिन बाद ही नहीं याद रहता कि हम कौन सी जगह गए थे. तो डेफिनेटली इट वॉज नॉट एक्सपीरियंस, इट वॉज जस्ट आर
willingness to visit a place and या that's तो it. एक्सपीरियंस वाज दैट बैड, मुझे लगता है बैड हाँ. एक्सपीरियंसेस भी याद रह जाते हैं, हाँ, तो या exactly. तो एक्सपीरियंस वाज वेरी एवरेज, You ठीक है, just- देयर वाज नथिंग अनयूजुअल अबाउट योर एक्सपीरियंस, या फिर तुम एक्सपीरियंस माइंडसेट से ही नहीं गए, तुम गए ही किसी और माइंडसेट से हो. आप सिर्फ स्पेंड करके आ गए हो. Correct. खत्म बात. फोर्थ, विल दिस बिकम अ हैबिट आई कैन नॉट अफोर्ड, इफ यस देन अवॉइड इट. हाँ, ये होता है काफ़ी बार कि हम कोई सब्सक्रिप्शंस की बात कर ले या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा महंगी है. सब्सक्रिप्शंस भी आई वुड से कि अगर वो आपको एक्चुअल में हेल्प कर रहा है शुड नॉट बी एन इशू. लेकिन अगर आप कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो फैंसी क्लोथ्स, हाँ. फैंसी शूज, काफी लोगों को जैसे स्नीकर्स का Sneaker बहुत heads होता है, का, स्नीकर right. हेड्स होते हैं, सो दे कीप स्पेंडिंग ऑन सच एक्सपीरियंसेस. या मतलब नथिंग रॉन्ग इफ दे कैन अफोर्ड इट, बट Correct. अगर नहीं कर True. सकते तो फिर अवॉइड. फिफ्थ, कैन आई अफोर्ड इट कंफर्टेबली विदाउट ब्रेकिंग माई सेविंग्स गोल, इफ यस देन गो अहेड. यस. Am I doing this to impress others? If yes, stop. This is very important. very important thing. मतलब इस चीज के ऊपर खुद तो के लिए नहीं करके दूसरों के दूसरों लिए. के And लिए. I've seen people. मैं पर्सनली इस चीज का वो रह चुकी हूँ विक्टिम, कि मतलब इन माई पास्ट आई थिंक आई हैव डन सर्टेन थिंग्स थिंकिंग अबाउट कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या ट्राइंग टू फिट इन, बट इवेंचुअली आई थिंक जैसे आई ग्रू एंड जैसे आई मैच्योर्ड, I stopped caring less about what people think about me, and that is how I escaped this. But a lot of people I know are still in that cage. trap. Yes, True. yes. And last one is, does this align with the future version of myself? If yes, then buy. If no, then skip. हाँ, तो future version की clarity होना is very much important in that case, right? And the last part here is example applying this to your fancy dinner scenario, which you asked as a question, जो आपने example दिया था. Reason to spend. You are in Dubai, a city where social exposure is powerful, helps you understand the elite conversation, builds confidence in high value environment, a memorable experience, and you can afford it assuming it fits your budget. Then in these cases you should do it. Reasons, it might be luxury if it becomes a weekly habit, if you are doing it for Instagram or validation, Instagram पे stories के लिए, if it conflicts with your savings or investing goals, if the restaurant doesn't contribute meaningful experience, just hype. हाँ, मतलब आप सिर्फ महंगी चीज़ें खा रहे हो, सेम चीज़ आपको 2 डिफरेंट प्लेसेस पे मिल रही है, आपको ख़राब टेस्ट मिल रहा है, फिर भी आप 5 स्टार होटल में जाके वो सेम चीज़ कर रहे हो, तो फिर. और यहाँ पे किसने एंड में एक बैलेंस फार्मूला दिया कि स्पेंड अग्रेसिवली ऑन लर्निंग, ट्रैवलिंग, एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप, फिटनेस, क्वालिटी एसेंशियल, एंड स्पेंड कॉशियसली ऑन luxury brands, status purchases, and recurring lifestyle experiences. So spend deeply on what matters and spend nothing on what doesn't. इसका final thought है, you don't get wealthy by being stingy, you don't get wealthy by being reckless, you get wealthy by being intentional, knowing exactly what you are spending on, and making sure every rupee has a reason. Nice. I think I'm very clear. तो मैं अपने टेक अवे बता देती हूँ सबसे पहले. Sure. ठीक है. मुझे आई थिंक one thing that really is really going to stick with me in this video is कि अगर तुम्हें वो एक्सपीरियंस अगले 6 महीने बाद याद नहीं रहने वाला है, देन इट्स नॉट एन एक्सपीरियंस, इट्स अ स्पेंडिंग. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई से कि यार आई एम गोइंग देयर फॉर एक्सपीरियंस, मुझे एक्चुअली कॉन्शियसली एक बार ये सोचना चाहिए कि इज दिस एक्सपीरियंस गोइंग टू बी एक्चुअली वर्थ रिमेंबरिंग आफ्टर 6 months, या फिर मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड मैं बस उसको एक्सपीरियंस का टैग दे के जा रही हूँ. And is it actually adding value to me? I think this is one part that personally मुझे लगता है मैं अप्लाई नहीं करती थी and I am going to use it. Okay. For me, अगर मेरा टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन वुड बी 2 points जो मेरे लिए बहुत बड़े से काइंड ऑफ एनलाइटनिंग मोमेंट्स हो गए. पहला कि एक्सपीरियंसेस को प्राइस से जब आप टैग करना स्टार्ट कर देते हो एंड द मोमेंट यू स्टार्ट कंसिडरिंग कि यू कैन गेट एक्सपीरियंसेस ओनली बाय स्पेंडिंग, दैट इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग, है ना. और जितना आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो उतना बेटर एक्सपीरियंस होगा, ये अंडरस्टैंडिंग या ये बिलीफ इज़ द बिगेस्ट रॉन्ग थिंग. एंड सेकेंड पार्ट विच वी जस्ट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग इज कि your bonding with person and your intent of bonding with that person are 2 different things.
दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी पर्सनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में हमेशा ये होता था कि अगर मुझे किसी बंदे के साथ में बिजनेस रिलेशंस डेवलप करने हैं, मुझे उसके साथ इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस ही करना है, बाकी चीज़ों में शायद वो इंटरेस्टेड ना हो, और दूसरा मैं करके भी उसको टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. बट वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर अल्टीमेटली एट द एंड वी आर ह्यूमंस. We bond over different topics. So first you bond, you get closer to them, and then you go ahead with whatever your pitch or deal is. So I think that was my takeaway. Great. Nice, good conversation. So we hope you like this discussion. हम लोगों ने तो इस डिस्कशन से बहुत कुछ सीखा एंड अपने टेक अवेज भी आपके साथ शेयर कर दिए. नाउ इट्स योर टर्न टू लेट अस नो कि आप लोगों ने इस डिस्कशन से क्या सीखा एंड पुट इट इनटू द कमेंट्स. एंड ऑल्सो अगर कोई भी ऐसा डायलेमा हो जो आपको लगता है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज डू पुट देम ऑल्सो इन द चैट बॉक्स एंड वील जस्ट पिक देम अप फ्रॉम देयर. Until then, see you in the next video.